Okay, good morning once again. Let's start. As I discussed earlier, also that in the book is divided into two portions. One is part A and one is part B. Part A is all about employability skills. Basically, IT जो हमारा चैप्टर है, हमारी IT जो हमारा सब्जेक्ट है, it covers the skills. It develops the skills which help us to get employment in the near future, right? So we'll try to learn new things. We'll try to learn those things which are very commonly used in various fields right nowadays, right? So your syllabus is covered divided into two portions. Basically, there's one portion called as employability skills. The second portion is your main curriculum, right? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में क्या है बेसिकली उसमें आपका जनरल सी चीजें हैं जैसे हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन, हाउ टू इम्प्रूव योर लैंग्वेज, राइट, हाउ टू मैनेज योर सेल्फ, राइट, सच काइंड ऑफ नॉर्मल थिंग्स आर देयर. तो वो सब चीजें तो कॉमन सी है. सो विल स्टार्ट विद दैट फर्स्ट, राइट, एंड देन वी गो ऑन टू द main part of the book will is totally based on IT and the curriculum related to IT skills only. ओके, हम पहले एम्प्लॉयबिलिटी से शुरू करते हैं. तो लेट मी शेयर माय बुक फर्स्ट ऑफ ऑल, देन विल मूव ऑन. नाउ योर बुक कवर्स अप, I'll just show you the entire thing first. See, your exam total marks are 100, and out of this 100, 50 marks are for theory exams, and 50 marks will have practical exam at the end of the year, right? In between ये practical वाला जो 50 है, इसको भी मैं elaborate करके बता दूंगा कि 50 में क्या क्या आएगा. ठीक है. Talking about this 50 theory, इसमें 10 marks are covered under part A, which is employability skills, right? And 40 marks will be covered in part B, which is vocational skills, right? Now, what are vocational skills? Vocational skills में सारे IT से related topics हैं. जैसे these are the 5 topics. Introduction to IT and ITES industry. This is all related to how IT is working in the current industry nowadays, right? Then mastering typing. There's a software in which you'll try to learn how to improve your typing speed. Then we have digital documentation. Now, digital documentation is a topic where we type. It's just like MS Word, Microsoft Word, right? Then we have electronic spreadsheet. Electronic spreadsheet is all about Excel and related to that. Excel is a software where spreadsheets are made and where we can have we can manage the data in an effective way. We can calculate the things on the data which is there in the sheet, right? Fifth one is presentation. Presentation आपका PowerPoint है. तो इन तीनों टॉपिक्स का 10-10 नंबर का पार्ट है. देन मास्टरिंग टाइपिंग विल कवर अप 6 marks and IT and ITES industry will have 4 marks. So in all this total is 40 and 10 is employability skills, right? Now if we talk about practical part में आपकी दो चीजें हैं. एक तो you'll have a practical test. In that practical test there is one exam in which you are given certain topics to perform on the computer and वो 15 नंबर के होंगे. एक शॉर्ट रिटन टेस्ट होगा जो 10 मार्क्स का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, एंड देयर विल बी वाइवा बेस्ड ऑन द थिंग्स दैट यू आर डूइंग ऑन द कंप्यूटर्स. 10 मार्क्स का वो वाइवा है. एंड द लास्टली वी हैव प्रोजेक्ट वर्क आल्सो. So project work में either we can make portfolios or we can go with practical file. So this year we started with the practical file. तो practical file आपकी उस पब्लिशर के पास अवेलेबल है जो बुक सेल कर रहा है. तो आप वहां से उस प्रैक्टिकल फाइल को ले लो. So in the meantime, I'll give you some task that we'll do, and I'll explain everything. How will you write the things on that practical file, right? And then we have 5 marks viva based on that practical file only. तो 15 मार्क्स ये हो गया, 35 ये हो गया, तो ये 50 आपका प्रैक्टिकल टास्क है जो आपके पूरे सेशन में कंप्लीट होगा. दिस एग्जाम विल held up in the end of the session, right? Now let's talk about first we'll do this practical this employability skill portion, part A. We'll cover up this first. So in this we have 5 units.
First is communication skills. How will you develop your communication? Self management. How will you manage yourself? ICT skills. ICT skills में आपके सब IT से रिलेटेड टास्क हैं जो आप पहले भी जूनियर क्लासेस में किए होंगे. Entrepreneurship skills or entrepreneurial skills, these are basically related to business applications. So if you want to start your own business, what all things you should understand, what all things you should know. And lastly we have green skills. Green skills हमारे skills होते हैं जो environment को कैसे हमने improve करना है, बचाना है, right? IT को भी improve करना है with the help of that thing. While improving the IT skills, how will you handle the environment? So today we'll start up with communication part, right? So let's go to that. First unit, communication skills. पहली चीज है कि what are employability skills? Employability skills है क्या? These are the skills which are bound to make person reliable, keen to learn, dependable. One cannot be can be trusted to take critical decisions when required. So हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक पर्सन की एबिलिटी को इम्प्रूव करना है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के थ्रू, राइट? दैट पर्सन विल बी मोर रिलायबल, राइट? पर्सन विल लर्न अ लॉट एंड देन अ पर्सन विल बी डिपेंडेबल ऑन हिमसेल्फ, मतलब ही और शी कैन डू हिज ओन वर्क वेरी एफिशिएंटली without the help of others. And moreover, if a person is good employability skills, that person can make decisions on his or her own. ठीक है? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स वो स्किल्स हैं जिससे कि एक पर्सन रिलायबल बनता है, उसको सीखने के लिए अपने आप सीखने का मौका मिलता है. पर्सन इज डिपेंडेबल ऑन हिमसेल्फ, मीन्स उसको किसी और के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ता, राइट? और जितने भी क्रूशियल डिसीजंस हैं लाइफ में वो खुद ले सके, राइट? सो हम इस टॉपिक में, इस यूनिट में विल ट्राई टू लर्न ऑल सच स्किल्स, राइट? इसमें हमने कम्युनिकेशन करना है, सेल्फ मैनेजमेंट करना है, आईसीटी के स्किल्स करने हैं, एंटरप्रेन्योरल स्किल्स करने हैं और ग्रीन स्किल्स करना है. फर्स्ट विल टॉक अबाउट कम्युनिकेशन. वी ऑल नो व्हाट इज कम्युनिकेशन. Communication means when you want to communicate to somebody, when you want to share your knowledge, share your ideas to somebody with the help of any channel, we call it as communication, right? Communication आया कहाँ से? Communication कहाँ से आया? Communication is a word taken from Latin. It's a Latin word, and which communis और communicare से बना है. Communicare, communis का मतलब है sharing, common और sharing, and communicare is a verb that means to make something common बनाना. Okay, तो कम्युनिकेशन का मतलब हो गया अपने थॉट्स, इंफॉर्मेशन को दो या दो से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना, राइट? इंटरचेंजिंग ऑफ थॉट्स. हाँ जी बेटा. सर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सर रिपीट कर दो. ओके. Employability skills are the skills which makes a person more reliable, which makes a person keen to learn, right? Which helps a person to learn new things himself or herself, right? Or when a person has good employability skills, that means वो person लोगों पे dependent नहीं है, वो independent है, and that person can make crucial decisions whenever required. Employability skill से क्या होता है? एक person reliable बनता है, खुद सीखने को कैसे अपने आप सीखना है वो चीजें सीखता है, वो पर्सन किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता और क्रूशियल डिसीजंस अपने आप ले सकता है. ठीक है, ये हम सीखते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर. फाइन, क्लियर नाउ? ओके सर.
Okay, so we were talking about communication. Communication क्या है? Interchange of thought and information, exchange of thoughts and information. एक पर्सन ने जो कुछ सोचा या जो कुछ वो किसी और को पास ऑन करना चाहता है, what information he want to pass on, उसको हम कम्युनिकेशन करते हैं जब वो इंफॉर्मेशन या थॉट एक पर्सन से दूसरे पर्सन को पास ऑन होता है, राइट. एंड थिंग्स कैन बी पास्ड ऑन टू टू और मोर पीपल, दो या दो से ज्यादा लोगों को पास ऑन करना. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन. देन वी हैव व्हाट आर द फीचर्स. कम्युनिकेशन के फीचर्स क्या है, राइट. फर्स्ट थिंग इज टू और मोर पीपल आर इन्वॉल्व्ड. कम्युनिकेशन ऑलवेज हैपन्स व्हेन वी हैव टू और मोर पीपल. दो या दो से ज्यादा लोग हों तभी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तभी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी, राइट. So the person who is sending a message or sending a information is called as a sender, and the person who is receiving is called as a receiver, right. But important thing is that they should have mutual, they should accept them mutually, right. They should have common language also. अब ये भी नहीं हो सकता भी एक बंदे को there are two people who are communicating. First person doesn't know the language of the second person and second person doesn't know the language of the first person. एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं पता तो वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी, राइट. देयर शुड बी सम कॉमन लैंग्वेज एंड देयर शुड बी सम कॉमन टॉपिक इन विच दे आर डिस्कसिंग, राइट. कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस. टू वे प्रोसेस मतलब सेंडर मैसेज भेजता है रिसीवर को, रिसीवर फीडबैक भेजता है सेंडर को वापस. तो ये टू वे प्रोसेस है दोनों तरफ से, सेंडर से रिसीवर, रिसीवर से सेंडर, राइट. कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, राइट. इसको हम डायनेमिक प्रोसेस बोलते हैं. डायनेमिक प्रोसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है. कंटिन्यूअस मतलब वो लगातार चलता रहता है. अ सेंडर इज टेलिंग समथिंग, a receiver is listening something, and the receiver is understanding the things also. ठीक है. सेंडर अपना मैसेज भेजेगा, रिसीवर मैसेज को रिसीव करेगा, फिर रिसीवर उसको समझेगा. जैसे जैसे हम कर रहे हैं अभी कम्युनिकेशन कर रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे हम कर रहे हैं. आई एम गिविंग थिंग्स टू यू, आई एम पासिंग ऑन थिंग्स टू यू पीपल. मैं सेंडर हुआ, आप लोग रिसीवर हुए, राइट. एंड इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग तो दैट्स अ गुड इफेक्टिव कम्युनिकेशन. ठीक है सर चैट एग्जांपल होगी. चैट भी एग्जांपल हो जाती है, बिल्कुल सही है. चैटिंग इज आल्सो एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेशन, कि आप चैट कर रहे हो किसी के साथ तो, राइट. बट इसमें एक ध्यान रखना होता है कि अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसीलिए कम्युनिकेशन में एक फीडबैक का ऑप्शन भी होता है कि जो रिसीवर है जिसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन गई वो एक फीडबैक जरूर दे, ताकि सेंडर को भी पता लगे कि कम्युनिकेशन प्रॉपर हुई है या नहीं है. जैसे आप लोग मुझे फीडबैक दे रहे हो ना कि सर ये होता है, ये होता है, राइट. So that part is also very important in communications. We'll do all these things. Communication को effective कैसे बनाना है हम आगे करेंगे ये चीजें. ठीक है. ओके सर. Okay, so communication involves an exchange of ideas, facts, opinion, gestures, emotions. अब देखो कम्युनिकेशन की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बहुत सारे तरीके से हो सकती है कम्युनिकेशन. एक तो हो गया अभी आइडियाज हमने शेयर करे, एक हुआ हमने कुछ फैक्ट्स फिगर शेयर करी. फिगर्स का मतलब कुछ नंबर शेयर करिए, कुछ कोई डायग्राम शेयर किया, राइट. वो फैक्ट्स फिगर्स में आ जाता है. आइडियाज में हम अपने थॉट शेयर करते हैं. ओपिनियंस भी वही हो गया, अपने अपनी राय देनी. समटाइम्स वी गिव जेस्चर, जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे एक दूसरे को इमोजीज भेजते हैं ना, कि हैप्पी फेस, सैड फेस, क्राइंग फेस, एंग्री फेस. वो जेस्चर्स से पता लगता है कि भाई जो सेंडर है वो क्या कहना चाहता है या रिसीवर वो क्या समझ रहा है. तो ये जेस्चर्स का कम्युनिकेशन भी होता है समटाइम्स. फिर इमोशंस का भी होता है. इमोशंस में भी वही इमोटिकन्स आते हैं. इमोटिकन्स मतलब वही जो आप इमोटिकन्स भेजते हो, हैप्पी फेस, सैड फेस एंड ऑल. ठीक है. और तीसरी चीज है एक्शंस. एक्शंस भी हम एक्सचेंज कर सकते हैं कि इफ आई वांट टू डू समथिंग सो आई विल पास ऑन वन एक्शन टू यू पीपल. ठीक है. तो ये सारी चीजें कम्युनिकेशन के अंदर होती हैं.
और कम्युनिकेशन में भी वेल थॉट ऑफ का मतलब है कि हम जब भी कम्युनिकेट करते हैं हम सोच समझ के करते हैं। वी नो द पर्सन टू हुम वी आर कम्युनिकेटिंग, राइट। हम ये जानते हैं कि सेंडर कौन है। कई बार ऐसा भी होता है कि वो हम ये नहीं जानते हैं रिसीवर कौन है, ठीक है। जैसे मान लो हम कोई लाइव लेक्चर लगा रहे हैं, राइट, और हम यूट्यूब पे लाइव लेक्चर लगा रहे हैं। अब यूट्यूब पे कौन कौन आपकी उस लाइव लेक्चर को सुन रहा है वी डोंट नो, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में कई कैटेगरीज, कई तरीके हो सकते हैं। तो इट कैन बी वेल थॉट ऑफ मतलब प्लान्ड हो, पहले से प्लान्ड हो, एंड इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। इंटेंशनल का मतलब होता है कि आप सोच समझ के कर रहे हो कम्युनिकेट। अनइंटेंशनल मतलब कि आपको भी नहीं पता आप कम्युनिकेट कर रहे हो, राइट। यू जस्ट पास ऑन अ मैसेज एंड दैट मैसेज कीप्स ऑन फ्लोटिंग टू अदर पीपल, वो आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जितना कहते हैं ना वायरल हो गया, वो वायरल हो गया में क्या होता है कि वो एक मैसेज आगे पास ऑन होता रहता है। वो अनइंटेंशनल कम्युनिकेशन हो गई। इंटेंशनल तो होगी, आपने पता है कि आप इस पर्सन को मैसेज भेजना है, उस पर्सन को मैसेज भेज दिया, राइट, वो इंटेंशनल है। तो ये भी दो कैटेगरीज हैं, राइट। देन कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक चेन ऑफ इवेंट्स। सिस्टमैटिक चेन ऑफ इवेंट्स का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल, if the medium of communication, the telephone, were to develop a snag, communication would be affected. Where to develop a snag? So if you're communicating to someone with the help of a telephone, right, and you people have some technical problem in between, तो उससे communication का effect को काफी इफेक्ट पड़ता है, राइट। जैसे हम लोग कई बार जूम क्लास लगाते हैं तो जूम क्लास में भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं। आपको मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, या मुझे आपका फीडबैक नहीं सुनाई दे रहा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, वॉइस इज नॉट गोइंग, वीडियो इज नॉट बीइंग एबल टू शेयर, राइट। तो ये सारी चीज़ें एक सिस्टमैटिक चेन की तरीके से होती हैं इवेंट्स में, राइट। नाउ विल टॉक अबाउट व्हाई दिस कम्युनिकेशन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आजकल तो यू पीपल ऑल नो दैट कोरोना टाइम्स है एंड वी cannot attend the school, so it's a big boon for all of us so that we can understand the things at home also। हम लोग communicate कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। टीचर्स आर पासिंग ऑन थिंग्स टू पीपल, राइट। तो इसका फायदा क्या है? पहली चीज कि कम्युनिकेशन बिल्ड्स अ बॉन्ड, राइट। बॉन्ड का मतलब कि जो सेंडर और रिसीवर है इन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बनता है, राइट। जब आपकी कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव तरीके से हो रही है, व्हेन द कम्युनिकेशन इज वेरी इफेक्टिव, so it lays a strong foundation for any relationship, right? When communication is good, जो सेंडर भेज रहा है मैसेज, रिसीवर उसको अच्छी तरह समझ रहा है, रिसीवर उसको अच्छी तरह फीडबैक दे रहा है, कम्युनिकेशन का पूरा लेवल बिल्कुल इजीली चल रहा है, स्मूथली चल रहा है, तो उससे उन दोनों पर्सन के बीच में एक अच्छा हेल्दी रिलेशन भी बनेगा, राइट। that relation can be at home also, it can be at workplace, it can be during studies also, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिल्ड होता है, ये एक अच्छा बढ़िया ऑप्शन है कम्युनिकेशन का। देन कम्युनिकेशन बिल्ड्स नॉलेज। कम्युनिकेशन से हमें नई चीजें सीखने को मिलती हैं, जो हमें नहीं पता है हम किसी और से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, किसी दूसरे पर्सन की नॉलेज को हम शेयर कर सकते हैं। वी आर गेटिंग द नॉलेज फ्रॉम सम अदर पर्सन, तो उससे आपको नॉलेज भी मिलती है। जैसे हम लोग हैं, द टीचर्स आर गिविंग their knowledge to you all people, fine, so you people are getting knowledge from all the teachers that we are taking up your classes, okay। तो ये एक नॉलेज बिल्ड करना भी कम्युनिकेशन का अच्छा इफेक्टिव पार्ट है। कम्युनिकेशन इज ए स्ट्रेस रिलीवर, ये हम आगे भी करेंगे, चैप्टर है हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट का। स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब है कि भाई कई बार क्या होता है कि हम लोग वी आर अंडर स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब कि आपके दिमाग पे बहुत सारी चीजें चल रही हैं, राइट। तो उस स्ट्रेस को आप कैसे निकाल दो? जैसे होता है ना एग्जाम के टाइम पे स्ट्रेस होता है, यार मेरा एग्जाम आ गया, मुझे ये नहीं आता, मुझे ये करना है, ये रह गया, वो करना है, तो टेंशन होती है। वो जो टेंशन है वो स्ट्रेस है, राइट। तो ये स्ट्रेस को कम करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है कम्युनिकेट करना।
तो हम लोग नॉर्मली सब यही बोलते हैं कि जब भी आपको कुछ स्ट्रेस हो, यू आर फीलिंग समथिंग प्रॉब्लमेटिक, काइंडली टॉक टू योर पेरेंट्स, काइंडली टॉक टू योर फ्रेंड्स। अब पेरेंट्स से बात करो, फ्रेंड्स से बात करो, ग्रैंड पेरेंट्स से बात करो, दे विल गाइड यू इन दैट पर्टिकुलर सिनारियो, राइट। तो ये कम्युनिकेशन से आपका स्ट्रेस बहुत रिलीव होता है, कम होता है, ठीक है। तो दिस स्ट्रेस एंड ऑल विल लर्न इन द यूनिट 3 ऑल्सो, उसमें भी आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट पे कुछ टॉपिक्स आएंगे, कुछ तरीके आएंगे, विल लर्न देयर ऑल्सो। नाउ कम्युनिकेशन इज एन इफेक्टिव कोऑर्डिनेटिंग टूल। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि देखो भाई, अगर हम एक वर्क प्लेस की बात करें, एक ऑफिस है, उस ऑफिस में बहुत सारे लोग काम करते होंगे, राइट। और जो उस ऑफिस का हेड होगा, वो हेड जो है, वो अगर इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पा रहा है अपने सारे एम्प्लॉयज को, तो उनका काम अच्छा चलेगा। अगर जो हेड है उसका कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग नहीं है, he is not able to convince his employees, so then जो एम्प्लॉयज है उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होगा। कॉन्फिडेंस कम होने से क्या होगा, उनकी जो आउटपुट है, जितना वो काम कर सकते हैं, वो इफेक्टिवली बाहर नहीं आएगा, ठीक है। उनका उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, काम करने की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। सो दिस कम्युनिकेशन इज वेरी इफेक्टिव while coordinating with the team, ठीक है। क्योंकि ऑफिस और होम, इवन घर पे भी हम लोग अगर बात करें तो पेरेंट्स जो घर पे बड़े हैं, वो अगर अच्छी तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं सारे सारे जितने भी घर के मेंबर्स हैं उनके साथ, सबको हर चीज़ को थॉरली डिस्कस करके फिर वो प्लान करते हैं, तो उससे कहीं तरह की किसी तरह की प्रॉब्लम या कमी नहीं रह जाती, ठीक है। तो सब लोग मिलजुल के आपस में आराम से काम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कम्युनिकेशन का, कि कोऑर्डिनेशन को बहुत इंप्रूव करता है। और जब कोऑर्डिनेशन इंप्रूव है, देन यू विल गेट सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑल्सो, इट बूस्ट अप योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। कि अगर आपको घर से, पेरेंट्स की तरफ से अच्छा सपोर्ट है, तो आप पढ़ाई में भी अच्छा करोगे, क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो आपको लगता है हाँ भी मैं अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो हमेशा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट होता है इस चीज से, फाइन। So your self-confidence will increase with the help of this. Then it also helps you to work, helps you in the workplace. This we have just discussed कि workplace मतलब जहाँ पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, उस काम करने वाले एरिया में अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है अपने कलीग्स के साथ, सीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ, तो आप इजीली काम कर सकते हो। आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस कर सकते हो सीनियर्स के साथ, सीनियर जूनियर्स को कोई प्रॉब्लम है तो वो आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। यू कैन गाइड देम, यू कैन गाइड योर टीम, यू कैन कंट्रोल देम, यू कैन मैनेज द थिंग्स वेरी इफेक्टिवली देयर, राइट। सो कम्युनिकेशन से बहुत फायदा होता है। देन कम्युनिकेशन इज एन एसेंशियल लीडरशिप क्वालिटी नाउअडेज। जब आप हायर स्टडीज कर लोगे, उसके बाद जब आप कहीं जॉब करने जाओगे, तो जॉब करते में उससे पहले इंटरव्यूज होती हैं। इंटरव्यूज में जो इंटरव्यू लेता है, दैट पर्सन ऑलवेज ट्राइज टू जज डू यू पीपल हैव लीडरशिप क्वालिटी इन यू और नॉट। अब ये लीडरशिप क्वालिटी क्या है? लीडरशिप क्वालिटी का मतलब है कि दैट कैन यू लीड अ टीम और नॉट, कैन यू communicate effectively with the group of people who are working under you। अगर आपको हमने टीम का लीडर बना दिया, तो क्या आप उस टीम को इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हो? क्या आप उनको अच्छी तरह समझा सकते हो सारी चीज़ें? और क्या आपका जो आउटपुट है वो प्रॉपरली या 100% बाहर आएगा, या इफेक्टिवली बाहर आएगा कि नहीं आएगा? तो ये चीज़ें हमेशा चेक होती हैं। सो ये इम्प्रूव कैसे करनी है? दिस ओनली इम्प्रूव्स इफ यू कम्युनिकेट विद योर नियर एंड डियर वंस, राइट। सो कॉर्पोरेट सेक्टर मतलब जहाँ पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में कह सकते हो, वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। सो इफ यू आर गुड इन कम्युनिकेशन, देन यू कैन बी ए गुड लीडर ऑल्सो, ठीक है। तो कम्युनिकेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस पार्ट, फाइन।
नाउ विल टॉक अबाउट द की एलिमेंट्स। कम्युनिकेशन के की एलिमेंट्स क्या है? जैसे हमने पहले बात करी, टू वे कम्युनिकेशन होती है, ये डायनामिक प्रोसेस है, राइट? तो इसमें दिस इज बेसिकली a cycle. There is one person who is a sender. Sender is the one who initiates the process. Initiate मतलब start करना by sending a message. Sender कौन है? जो मैसेज भेजता है, एक कम्युनिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करता है, राइट? एंड ही मस्ट बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर. इफेक्टिव कम्युनिकेटर होना जरूरी है, राइट? देन देर इज वन प्रोसेस कॉल्ड एज एनकोडिंग. अब एनकोडिंग का क्या मतलब है कि कई बार ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है पूरा, उसमें हमें जो भी मैसेज हम भेज रहे हैं, वी वांट टू सिक्योर दैट मैसेज, राइट? हाउ विल यू सिक्योर दैट? देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ सिक्योरिंग. तो हम लोग क्या करते हैं, उस मैसेज को एनकोड कर देते हैं. एनकोडिंग मीन्स ट्रांसलेटिंग दैट थिंग इनटू अ मैसेज व्हिच कैन बी इजीली अंडरस्टैंड बाय द रिसीवर. कि जो मैसेज आपने कन्वे करना है उसको एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना ताकि वो रिसीवर जो है, जो रिसीव करेगा मैसेज को, वो अच्छी तरह उसको समझ सके. ठीक है? तो ये एक अच्छा प्रोसेस है. एनकोडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम्युनिकेशन में अगर आप ऐसे ही, जैसे मान लो यू आर सेंडिंग ए मैसेज टू एन एम्प्लॉई हु इज वर्किंग इन साउथ ऑफ इंडिया, राइट? लेट्स से कर्नाटका. नाउ यू सेंड ए मैसेज इन हिंदी. अब कर्नाटका वाले पर्सन को हिंदी में नहीं आती होगी, तो उसको मैसेज समझ नहीं आना. इसलिए एनकोडिंग की जाएगी. whatever message you are sending, it should be sent in a form so that the person who is receiving it, that message should be able to understand that properly. So this is done with the help of encoding. में क्या करेंगे, उस हिंदी मैसेज को इंग्लिश में या कन्नड़ में कन्वर्ट करके वी कैन सेंड इट. ठीक है? ताकि वो जो कर्नाटका का पर्सन है वो उसको समझ सके. फाइन? यस सर. Okay. Then third thing is a message. Message is the information that we want to convey. जो मैसेज हमने भेजना है उसको हम जो इंफॉर्मेशन हमने भेजना है उसको हम मैसेज बोलते हैं, राइट? एनकोडिंग के बाद जो मैसेज बनता है उसको हम मैसेज बोलते हैं. अब मैसेज दो तरह के होते हैं. एक तो वर्बल है. वर्बल मतलब जो या तो बोल के या लिख के. एक होता है नॉन वर्बल. नॉन वर्बल में क्या था, जैसे हम पहले बात करी थी, इमोजीज भेज दिए, जेस्चर्स से बता दिया, आई कांटेक्ट से पता लगता है, ठीक है? फेशियल एक्सप्रेशन से पता लगता है. ठीक है? अब ये फेशियल एक्सप्रेशन कैसा मैसेज देते हैं? अगर मान लो आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो और जो सामने वाला पर्सन है वो गुस्से में है, तो आपको उसके फेस से जज हो जाएगा कि हाँ भी ये गुस्से में है. सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन इज नॉट हैप्पी विद योर मैसेज. ठीक है? तो वो फेशियल एक्सप्रेशन से हमें एक कम्युनिकेट हो रहा है मैसेज. तो दिस इज ऑल्सो कम्युनिकेशन, राइट? व्हेन वी टॉक टू समबडी, अगर आप उनकी आईज में देख रहे हो, अगर वो पर्सन आपके साथ आई टू आई कांटेक्ट बना रहा है, आपके साथ आपकी तरफ देख रहा है, तो आपको लगेगा कि हाँ भी वो मेरी बात सुन रहा है. और अगर वो नहीं देख रहा, ही इज लिसनिंग टू समथिंग एल्स, और इधर उधर देख रहा है, इधर घूम रही आईज उसकी, तो इसका मतलब वो अटेंटिव नहीं है. ठीक है ना? तो दिस इज ऑल्सो कम्युनिकेशन. ये सब चीजें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है. वर्बल में दो तरीके हैं, या तो बोलकर, स्पोकन, या रिटन. ठीक है? जो हम व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं दैट इज रिटन, राइट? वॉइस कॉल करते हो दैट इज स्पोकन, राइट? जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं दैट इज स्पोकन ऑल्सो एंड विजुअल ऑल्सो, राइट? नॉन वर्बल में अगर आप कोई जेस्चर इमोजी भेज दिया, या आई कांटेक्ट से समझ गए, या फेशियल एक्सप्रेशन से समझ गए, तो वो एक तरह का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है. नेक्स्ट थिंग इज कम्युनिकेशन चैनल. नाउ सी, मैसेज दैट वी सेंड हैज टू गो थ्रू अ चैनल. वो मैसेज हमेशा एक चैनल के थ्रू जाता है, राइट? देयर शुड बी वन मीडियम थ्रू व्हिच दैट मैसेज इज सेंड फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर. सेंडर जो है वो रिसीवर तक जो मैसेज जा रहा है वो एक चैनल के थ्रू जाएगा. चैनल क्या है? एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू वो मैसेज ट्रांसफर होता है. अब नाउ दिस चैनल कैन बी एनीथिंग, इट डिपेंड्स अपॉन द मैसेज दैट वी आर सेंडिंग. अगर तो कोई वॉइस मैसेज है तो चैनल क्या होगा? there should be something related to voice chat or something like that.
तो वो चैनल आपका जैसे व्हाट्सएप है, वो चैनल हो गया जिसके थ्रू हम ऑडियो मैसेजेस भेज सकते हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो मैसेज भेज रहे हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक चैनल हो गया। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू चैनल चला गया, आपका मैसेज चला गया, वीडियो मैसेज, राइट। अगर आप रिटर्न मैसेज कर रहे हो तो रिटर्न व्हाट्सएप के थ्रू भी जा सकता है, ईमेल्स के थ्रू भी जा सकता है, चैटिंग के थ्रू भी हो सकता है, राइट। तो ये सब व्हाट्सएप, ईमेल, चैटिंग, दीज आर चैनल्स, राइट। So lot of mediums are available nowadays: video conferencing, chatting, email, right? Video conferencing, Twitter, all such things are communication channel. रिसीवर वो पर्सन है जो मैसेज रिसीव करता है और समझता है। The person who receives a message and understands it, that person is called as a receiver, right? A receiver should be a good interpreter. Interpreter कौन होता है? Interpreter मतलब कि जो मैसेज आया उसको इस फॉर्म में रखना, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना कि जो रिसीवर है उसको समझ सके। तो कन्वर्जन वाला प्रोसेस भी होना चाहिए। जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना, एनकोडिंग करना होता है, एनकोडिंग के बाद डिकोडिंग भी होती है। रिसीवर रिसीव्स अ मैसेज, देन दैट रिसीवर डिकोड्स द मैसेज। डिकोड मतलब उसको वापस ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना कि मैसेज जो है इजीली पढ़ा जा सके, उसको समझा जा सके। ठीक है, अब अगर हम एक सिंपल सी बात करें, एक तरीका होता है एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन क्या होता है कि जैसे मैंने मान लो कोई मैसेज भेजना है अपने फ्रेंड को, तो अगर मैं एनक्रिप्शन टेक्निक यूज करूं तो मेरा मैसेज जो है वो ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जो किसी को नहीं समझ आना। उससे क्या होगा, मेरा मैसेज सिक्योर हो जाना है। जो कुछ भी मैंने लिखा अल्फाबेट्स में वो सारा कन्वर्ट हो जाएगा किसी सिंबल में, कुछ डॉट में, कुछ अलग कैरेक्टर्स में, तो वो किसी को समझ ना आए। वो एक सिक्योरिटी मेथड है एनक्रिप्शन करना, वो एनकोडिंग होती है। फिर वो जो मैसेज जब रिसीवर के पास गया तो रिसीवर ने उसको डीकोड करना है। ठीक है, वो वापस उसको एक रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो वो जो प्रोसेस है कन्वर्ट करने का रीडेबल फॉर्म में, उसको हम डीकोडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो डीकोडिंग हो गई, उसके बाद रिसीवर ने उसको मैसेज को रीड किया, समझा, और लास्ट में फीडबैक जनरेट किया। फीडबैक मतलब कंफर्मेशन देनी कि उसके पास वो मैसेज आ गया है, मैसेज उसने समझ लिया है, राइट। सो दिस इज द कंप्लीट साइकिल। sender sends a message, after encoding message is sent through a channel, it is received by the receiver, it is decoding is done, and then receiver sends the feedback back to the sender. Fine, this is all communication cycle is about. तो हमारा फर्स्ट सेशन यहाँ पे खत्म होता है, right? And I think I'll end up now because time is running. So kindly go through the things, रीड आउट ऑल दीज थिंग्स। सेशन 1 आप अच्छी तरह रीड आउट करो। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, यू कैन कॉल मी बैक और यू कैन सेंड मी अ मैसेज एनी टाइम, राइट? एनी डाउट टू एनीबॉडी?